All right. So I will be writing down some points, guys, for advanced reversals. Okay. So guys, many of you have attended my previous webinar also, which was last Sunday. Okay, in which, guys, we have discussed one framework, which was TAE framework. Okay, just a small introduction about this once again. Okay, so what T stands for? Trend analysis. Okay, A stands for area of opportunity, guys, and E stands for entry trigger, guys. Okay, so guys, what do you think? What do you think? Is it a proper framework which we should follow, or do you think it's not useful? Yes. Yes, proper framework is must. Yeah. Okay. Guys, is everyone comfortable in English, or we should switch on Hindi? Is everyone comfortable in English, guys? Yes, we are comfortable. Okay. So guys, when it comes to trading, okay, then this framework is very important. I already discussed in my previous webinar, okay, in detail what it is. So if you want to go in detail, you can check the video on my YouTube channel. It is already uploaded there, and you can definitely know about it, that what it is. Okay, I'm not going to discuss it again. Okay, but just a small introduction about this. Okay, so guys, when it comes to trend analysis, you very well know, okay, that trend is something which is very crucial when it comes to trading. Okay, trend is very crucial part when it comes to trading, and especially for intraday traders, guys, it is very important. Okay, because might be trend of Nifty is bullish on a longer term. Okay, but as of now for intraday it might be under retracement. So do you think, guys, a person who is an intraday trader, for him, if he goes with the trader who is bullish for a longer term, is it useful for him in intraday? No, definitely no, guys, because in intraday Nifty is retracing on downside. So definitely if he wants to book profits, if he want to earn money, right, he has to sell Nifty, then only he can earn money, right? He cannot buy Nifty and earn money, because he is an intraday trader, right? From 9:15 to 3:30 only he has to wind up his positions, right? So in that scenario he cannot buy Nifty and book profits. He has to sell Nifty and book profits. But when it comes to a trader who is a kind of a positional trader, right, or a trader who is holding his positions for 1 week, 10 days, or depending on for a monthly expiry, right, then for him it is an opportunity to buy on dips. But a person who is an intraday trader, for him it is the opportunity to sell on rise. Is everyone understanding, guys, what I'm trying to say? Is everyone getting the point what I'm trying to say, guys? So can you mix Hindi and English together? Okay. So guys, what I said just now कि अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडर की बात करें और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर की बात करें, ऑल ऑफ यू म्यूट गाइस फ्रॉम योर साइड. ओके, सो अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडर की बात करें और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर की बात करें, मींस अ ट्रेडर हु इज होल्डिंग हिज पोजीशंस फॉर, यू से, फॉर 5 to 10 days और फॉर अ मंथली एक्सपायरी, राइट? सो इन दोनों ट्रेडर्स के बीच में इफ यू सी, ओके, लेट अस टेक एग्जांपल गाइस. So here is one of the trader who is intraday.
Okay, and here is one of the trader who is holding or a positional trader, right? Now guys, tomorrow, for example, tomorrow if Nifty is opening gap down, okay, tomorrow if Nifty is opening gap down, अगर कल Nifty नीचे खुल जाता है, then for this trader it is an opportunity to sell on rise, okay, because market is bearish for intraday. For intraday it is bearish. So for this trader who is doing intraday trading, for him it is bearish, okay. But on the other hand, a person who is doing a positional trading or holding it for a monthly expiry and assuming it that Nifty will touch 16,500 or 17,000 on the upper side, ठीक है, मतलब एक ऐसा बंदा है जो 9:15 से 3:30 तक ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है टू सेल ऑन राइज, ओके। बट उसी जगह पे जो दूसरा बंदा है, ही इज अ पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है, वो होल्ड कर रहा है फॉर अ मंथली एक्सपायरी, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है टू बाय ऑन डिप्स, ओके। सो सेल ऑन राइज is for intraday trader and buy on dips is for positional trader, okay. So मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है गाइस कि for both of them the trend is different, right? For both of them the trend is different because for a person who is intraday trader he has to sell on rise because trend is negative for intraday, but for a trader who is holding the trade for a monthly expiry, for them it is an opportunity to buy on dips, okay. So trend analysis is very important factor guys when it comes to trading, okay. We cannot take trend analysis very lightly, okay, because trend is something guys which needs lot of attention when you are especially a intraday trader, okay. When you are a positional trader it is not that much problem, right? But when you are a intraday trader, then it is very important that you follow the correct and the right trend, otherwise the results are only losses, ठीक है। तो intraday trader यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं, many of here are intraday traders, so for them it is very important guys कि हम लोगों को ट्रेंड सही से पता होना चाहिए, ओके। अगर हमें ट्रेंड ही पता नहीं है गाइज, देन वी यूज एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, वी यूज एनी काइंड ऑफ softwares, it is of no use, right? Because indicators and softwares are always lagging, right? They cannot give you the perfect result on time. They will give you the indications when market has already fallen 50%, right? So it is something on which we cannot depend, right? हम सॉफ्टवेयर्स पे और इंडिकेटर्स पे डिपेंड होके नहीं रह सकते, बिकॉज हमें वो सिग्नल जब तक देते हैं जब तक ऑलरेडी मार्केट 50% फॉल हो चुका होता है या 50% राइज हो चुका होता है, राइट? सो इन दैट सिनेरियो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर्स, राइट? हमें एक मैनुअल बेसिस पे हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा एंड देन वी हैव टू मेक आवर पोजीशंस ऑन टाइम, देन ओनली वी कैन गेट a perfect trade with a minimum risk and maximum rewards, okay? Because if you have a system, for example, which is only 60% efficient, okay, मतलब एक आपके पास ऐसा सिस्टम है जो 60% केवल इफेक्टिव है, 60% उसका रिजल्ट है, 40% उसका ड्रॉबैक है। स्टिल गाइज अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है देन इट इज गुड, 60% इज ऑल्सो गुड गाइज इफ योर रिस्क रिवॉर्ड इज एटलीस्ट 1:2 or 1:3. But if you don't have a risk reward and your system is 90% or 80% also, then also it's a drawback for you, okay? Because what happens guys when we don't have any risk reward, like हम कोई 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं वहां पे और हम टारगेट ले रहे हैं सिर्फ 5 रुपए का या 7 रुपए का या 10 रुपए का टारगेट ले रहे हैं, बट हम 10 रुपए तक वेट नहीं कर रहे गाइस, ओके? हमें मालूम है कि 10 रुपए का हमारा रिस्क है, वो तो हमारा बिल्कुल फिक्स है, उसको हम भले 10 रुपए से 11 रुपए पे कर देंगे बट हम 10 रुपए से 9 रुपए पे नहीं करेंगे, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू टारगेट गाइज, वी वेरी वेल नो कि 10 रुपए का टारगेट मिनिमम हमें लेना ही लेना है, बट स्टिल वी डोंट टेक इट गाइज। हमें 6 रुपए या 7 रुपए या 8 रुपए, इफ यू आर गेटिंग 6, 7, 8 रुपीज प्रॉफिट, वी बुक इट, ओके, एंड वी थिंक दैट वी आर बेस्ट। बट when it comes to risk reward, then you are not a proper risk reward trader,
okay, because you are taking risk of 10 rupees which is 100% fix. You are not changing it even to 9.5, but when it comes to a target you book early. Okay, so this early booking is not a sign of a professional trader, guys. Okay, this is the first point which you should note and which you should change from tomorrow itself. ओके कि अगर हम 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो हम मिनिमम 1 रुपए से ज्यादा ही टारगेट लेंगे गाइस. अगर हम 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 50 पैसे पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, देन इट इज नॉट अ प्रॉपर ट्रेड गाइस. ओके, दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉपर ट्रेड. So just keep this point in your notebook that from tomorrow onwards, if we are taking any trade which has a minimum risk reward of 1:2, then only we are going to enter into that trade. Otherwise, we will leave that trade. Okay, we have several opportunities throughout the day, guys. We have so many stocks, we have so many breakouts throughout the day. So we have n number of opportunities throughout the day. So don't think that, okay, if this trade is missed, I cannot do anything throughout the day. You have many opportunities. You can grab any opportunity, but when it comes to a risk reward, then you should be disciplined and 100% disciplined, guys. That is the only way to be a professional trader and to sustain in this market. Otherwise, it's very, very difficult, guys. Believe me, I am into this market from past 15-16 years. I have seen everything, every kind of up and downs in my life, in my trading career. So I very well know that without a discipline we cannot survive in this market, and it's 100% true, guys. Okay, now when it comes to the second point, which is area of opportunity, guys. Okay, so now what you have done, आपने ट्रेंड को एनालाइज कर लिया कि भाई इंट्राडे में ट्रेंड नेगेटिव है, मुझे सेल करना है. ओके फाइन, आपने समझ लिया कि आपको सेल करना है. यू हैव एनालाइज्ड एवरीथिंग, राइट. बट सेल कहाँ पे करना है, गाइस? Is it somewhere in between, or market is falling, you are jumping into the trade कि ठीक है मार्केट गिर रहा है, मैं सेल कर लेता हूँ, पैसा बन जाएगा. ओके, एसएल बहुत दूर है, कोई दिक्कत नहीं, एसएल तो ट्रिगर होगा नहीं मेरा, सो एसएल मैं लगा ही नहीं रहा हूँ, गाइस. ठीक है, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द टारगेट. ओके, सो these type of trades are very, very, very bad experience of your life. Okay, it happens with everyone, guys, कि मार्केट अगर गिर रहा है, people start buying puts, okay, or start selling futures. Okay, और market अगर बढ़ रहा है, then people start buying calls and buying futures and buying cash. Okay, so guys, we are into the right direction. ठीक है, आपने ट्रेंड को एनालाइज कर लिया, it is bullish. Okay, no problem. But now guys, हर ट्रेड के लिए एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे आपको एंट्री लेना है. Okay, it is not somewhere in between. Like for example, guys, if I say that this is a area of resistance and this is a area of support. Okay, now guys, मार्केट अगर मान लेते हैं निफ्टी का कल लगभग यहाँ पे, जैसे आज यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, ठीक है, कल निफ्टी लगभग यहाँ पे खुल जाता है. ओके, यहाँ पे खुलने के बाद गाइज अब निफ्टी यहाँ पे जाके फिर हल्का सा डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, तो आपके लिए जो प्रॉपर एरिया सेलिंग का है वो ये वाला है. ओके, इट इज नॉट समवेयर इन बिटवीन. ये एरिया नहीं है हमारे लिए सेलिंग का. ओके, या तो कैंडल को यहां पे टच करने दीजिए, तब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे. ठीक है, और अगर टच नहीं करता है और यहीं से फॉल हो जाता है, ठीक है, तो नो इश्यूज गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, लीव द ट्रेड. ओके, बट अगर आपने इस तरीके की ट्रेडिंग 2-3 बार कर ली और पैसे बना लिए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ट्रेड जहां पे लेता हूं वो सही होता है. ठीक है, बट गाइज अगर आप यहां पे ट्रेड ले रहे हो, इफ यू आर प्लेसिंग योर ऑर्डर्स एट दिस एरिया, ओके, you have a minimum risk, guys, because market is trading very close to the resistance zone. So if it is crossing, you can cut your trade with minimum losses. Okay, but उसी जगह पे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो गाइस, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो जाता है. सो स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो गया. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि गाइस आप इस लेवल तक का वेट तो करोगे नहीं बुक करने के लिए, आप लगभग यहाँ पे कहीं बुकिंग कर लोगे. मतलब आप प्रॉफिट तो छोटा सा ले रहे हो, लेकिन आप स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा रख रहे हो. सो इट इज नॉट एट ऑल अ गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड एंड नॉट एट ऑल अ लॉजिकल ट्रेड. ओके,
and we should not take this kind of trades if you want to be a professional trader guys. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर हमें प्रोफेशनल बनना है then guys we should not take these kind of trades. ओके और गाइज जब हम दो पॉइंट पे परफेक्टली वर्कआउट कर चुके होते हैं, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस एंड एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है एंट्री ट्रिगर गाइज. अब एंट्री ट्रिगर क्या होता है? एंट्री ट्रिगर कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, लाइक बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, इनसाइड बार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, पिन बार्स, डोजीज. ओके, दीज आर द एंट्री ट्रिगर्स. सो अगर हमें एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी पे एंट्री ट्रिगर भी मिल जाता है, ओके, देन दैट इज अ परफेक्ट ट्रेड गाइस. ओके, because you have a logic for that trade, or a trade without a logic guys is not a proper trade. Okay, like for example, if you are selling something, if you are selling nifty, okay, and any of your friend is asking, आपके दोस्त ने पूछ लिया कि आपने निफ्टी यहाँ पे क्यों सेल किया है, why you have sold nifty here, so you should have the answer for that this is the reason why I have sold it. You should not reply that I have seen in the news, माई ब्रोकर टोल्ड मी, मेरे दोस्त ने बता दिया था, मेरे मौसी के लड़के ने बता दिया था, राइट? यू शुड नॉट गिव दिस काइंड ऑफ आंसर्स, राइट? यू शुड हैव अ प्रॉपर रिप्लाई फॉर दैट व्हाई यू आर सेलिंग निफ्टी, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रिस्क, व्हाट इज द रिवॉर्ड. सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ ट्रेडर, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ. बट इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ ट्रेडर जिसने कोई न्यूज देख के ट्रेड ले लिया, या जिसने कोई SMS पढ़ के ट्रेड ले लिया, या जिसने किसी टेलीग्राम के कॉल पे ट्रेड ले लिया, या व्हाट्सएप के ग्रुप पे ट्रेड ले लिया, दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग गाइस. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, you need to focus on learning guys. That is very very important. And nowadays we have several virtual platforms also on which we can do practice like a live market. We don't need to put our money, हमें अपना पैसा नहीं लगाना है. वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप रियल मार्केट की तरह प्रैक्टिस करिए. जब आप परफेक्ट हो जाइए उसके बाद अपना फंड आप डालिए. तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं गाइज. आजकल का डिजिटल वर्ल्ड है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था. पहले हमें अपना पैसा लगा के ही ट्रेड करना पड़ता था, लूज करते थे, फिर हम चीज़ों को सीखते थे. बट आज हम विदाउट लूजिंग अ सिंगल पेनी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम पे वर्कआउट कर सकते हैं जब तक चाहें तब तक, 1 महीना 2 महीना 3 महीना. और जब हम परफेक्ट हो जाते हैं देन वी कैन स्विच टू द रियल ट्रेडिंग. ओके, सो गाइज दीज काइंड ऑफ थिंग्स अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, देन गाइज इट इज़ अ परफेक्ट path to become a professional trader. Otherwise guys, if you are focusing on different kind of softwares or different kind of strategies, okay, about which you don't know anything, you only just back test it for 5 days and you think okay that this is the holy grail which I got, now I don't have to do anything. Okay, so कोई भी strategy guys दुनिया में आज तक ऐसी नहीं बनी है जो आपको जिंदगी भर पैसा देती रहेगी. कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बना है जो आपको जिंदगी भर पैसा देता रहेगा. इट इज ओनली एंड ओनली योर सेल्फ एनालिसिस, योर मैनुअल एनालिसिस जो आपको पैसा देगी. ओके, सो मैनुअल एनालिसिस क्या होती है, रिवर्सल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट वी विल बी फोकसिंग जस्ट नाउ थ्रू द चार्ट्स. ओके, यस, आई विल शेयर एवरीथिंग गाइस, डोंट वरी. Okay guys, so this is a chart of Nifty guys, 15-minute chart. Okay, now what I will do simply, this is a chart, ठीक है. अब अगर guys मैं इसमें बहुत सारे इंडिकेटर लगा देता हूँ, definitely it is of no use for us, right? Because we'll get confused. ठीक है, simply guys एक सबसे अच्छा टूल है टू आइडेंटिफाई रिवर्सल्स, और वो टूल कौन सा है, कोई मुझे बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट टूल गाइस? एनीवन? ट्रेंड लाइन. यस, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज दैट टूल? मिस्टर नवेंद्र, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. RSI. ट्रेंड लाइन सर. ट्रेंड लाइंस, ओके, मिस्टर फरहान. ऑलराइट, सो गाइस ट्रेंड लाइन कितना पावरफुल टूल है ये MVM स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है. और
ट्रेंड लाइंस को प्रोफेशनल्स किस लेवल पे यूज करते हैं ये आप लोगों को भी पता है। अगर नहीं पता है तो आज इस चीज को आप समझ जाइए दैट ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है गाइस जो कि शायद लोग ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं। अगर आपने कोई ट्रेनिंग करी होगी इसके पहले तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जिस पे लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, राइट? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ट्रेंड लाइन से क्या होगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन से हमें कुछ इतना देखने को तो मिलेगा नहीं, और ट्रेंड लाइन खुद से बनानी पड़ती है गाइस, राइट? ट्रेंड लाइन हमें कोई बना के तो देता नहीं है। और आजकल जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो इतने केपेबल नहीं है कि हम जिस लेवल का सोच के ट्रेंड लाइन बना सकते हैं उस लेवल का वो लोग भी बना पाए, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर्स पे सबसे पहले आज की डेट से गाइस ये चीज आप लोग समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर्स पे से डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी है, पहली चीज। क्योंकि सॉफ्टवेयर्स गाइस अगर हमें पैसा बना के दे रहे होते तो हर बंदा अपनी जॉब छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के ट्रेडिंग के प्रोफेशन में आ गया होता। एम आई करेक्ट और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? If you agree, type yes, guys. Right? तो सॉफ्टवेयर से अगर हमारा पैसा बन रहा होता गाइस, so everyone would have left their jobs, everyone would have left their businesses, and हर बंदा ट्रेडिंग कर रहा होता, राइट? सो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल गाइस कि विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम पैसा बना पाएंगे, राइट? सो अब ये चीज आप समझ चुके हैं, आपको सब मालूम है कि किस चीज से पैसा बनता है, बट हम उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, राइट? अब सिंपली गाइज हम अगर ट्रेंड लाइन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई जो कि मैंने यहां से यहां तक ड्रॉ कर दी, ठीक है, ऑलराइट। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स को अटैच करते हुए एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है, और अपर साइड पे मैंने गाइज यहाँ पे 2 पॉइंट्स को अटैच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ये बना दी, ठीक है। तो क्या कहने, मैंने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला काम कर दिया क्या गाइज? केवल 2 पॉइंट को अटैच करके ट्रेंड लाइन ही तो बनाई है, ठीक है। बट इस ट्रेंड लाइन से गाइज बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन से गाइज ये सीखने को मिल रहा है कि जब मार्केट कहीं इस लेवल पे आया था, अब मुझे बताइएगा गाइस, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस वेबिनार में, लेकिन डेफिनेटली आप लोग आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अगर टाइम नहीं है गाइस तो आप इसको बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आज आप मेरे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ये मेरे गारंटी है। आप सीख के जाओगे और फ्री में सीख के जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा और मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप चुप रहोगे गाइस तो फिर मैं ये सेशन जल्दी वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही सेशन में हूं और दूसरा कोई नहीं। तो जब मैं पूछूं आपसे बोलने के लिए कहूं तो आप बोलिए, जब मैं बोलूं कि साइलेंस पे रहना है तब आप साइलेंट रहिए, ठीक है। तो अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सभी लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि जब मार्केट इस लेवल पे आया था और अगर ये ट्रेंड लाइन आपके सामने थी तो क्या यहाँ पे आप बाय करने वाले थे, वेट करने वाले थे, या यहाँ पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले थे? यस गाइस बताइए। सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे सर। सेल सर। सभी लोग बताइए गाइस, ऑल ऑफ यू। सर वेट करते थे सर। I will be waiting for the opportunity. राइट। सो गाइस एक ट्रेंड लाइन बनाने से हमारा ओपिनियन चेंज हो जाता है, राइट? बट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन, is it true guys? Because many of the traders were trapped on the higher levels. Many I got at least guys 100 plus messages on my WhatsApp and Telegram that sir we are trapped on 15 800 850 900 levels in Nifty, what to do now? Many are trapped. So guys, just a simple trend line has saved us. Can you see? By just joining the 2 points, we very well know that third time when market came at these levels, it has to cross this trend line, then only we'll buy. Otherwise we'll avoid it, ठीक है। बिकॉज रिटेलर्स को गाइज इसी तरीके से ट्रैप किया जाता है, ओके। रिटेलर्स को ट्रैप इसी तरीके से किया जाता है। दे ओपन द मार्केट गैप अप, टेक इट लिटिल मोर अप in 1 or 2 candles, and then people think that now today it will break the high,
ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विल स्टॉप अज्यूमिंग द थिंग्स, ओके। अजम्पशन नहीं करना है कि ब्रेक कर देगा तो यहां पे हम बाय कर लेते हैं, ओके। ये तो ब्रेकअप कर ही देगा, अब तो 16,000 आ ही जाएगा तो यहां पे हम बाय कर लेते हैं। ये गलती गाइस बहुत लोग करते हैं, मुझसे भी कई बार हुई है, ठीक है। आई ऑल्सो डिड दिस मिस्टेक in my 2010 or 11 time or 2012 time, and in fact now also it happens sometimes, okay, because when we do scalping or jobbing guys, then we have to be fast, और वहाँ पे ऐसी मिस्टेक होती है। बट गाइस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये 16,000 तक चला जाएगा, लेवल को ब्रेक कर देगा, तो फिर आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन लगा रहे हो, और अजम्पशन से कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। आपको दिख रहा है क्लियर कट कि ये ट्रेंड लाइन एक ऐसी ट्रेंड लाइन है ऑलरेडी जहां से मार्केट में 2 बार अच्छा फॉल आ चुका है। सो हम थर्ड टाइम कैसे इसको इग्नोर कर देंगे गाइस कि यहां से इस बार फॉल नहीं आएगा और यहां से इस बार ये ब्रेक हो ही जाएगा। मतलब आपका दिल अंदर से बोल रहा है कि ये इस बार ब्रेक कर देगा, इट विल ब्रेक इट, 100% इट विल ब्रेक गाइस। न्यूज में भी बोल रहे हैं इट विल टच 16,000, 16,100, and you are in full confidence, okay, and you are buying at the higher levels, and then when market is falling down, you are just thinking it is just a normal retracement guys, it will come up, okay. Again it came up, so now you are again confident, okay. Now you are adding your quantity, okay, because you are thinking now it will break guys, and then a sudden fall. Now you are silent, no one is ready to help you. If you are calling any of your brokers or any of your friends, he will say okay guys, hold it man, it will come up. And okay, then again it came up, but you did not cut your positions. So this is the third time you are getting the opportunity to cut your positions. This is the third time you are getting the opportunity, but still you are not cutting your positions because you are thinking, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब तो ऊपर चला ही जाएगा, और वहीं से गाइस एक मेजर फॉल आता है एंड योर अकाउंट गॉट वाइप्ड अप। आपका पैसा पूरा खत्म हो जाता है जस्ट बिकॉज यू टुक ट्रेड विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी कंफर्मेशन यू टुक योर ट्रेड, ओके। सो गाइज लॉजिक के बिना आज से ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे, अगर लॉजिक होगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट ट्रेड, वी विल अवॉइड दैट ट्रेड, ओके। अब गाइज अगर आप देखते हैं मैंने जो लोअर साइड पे जो ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है, सिंपली 2 पॉइंट्स को अटैच करके बनाई है, ठीक है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको एक बार जूम करता हूं गाइस और आपको यहां का पूरा सिनेरियो दिखाने की कोशिश करता हूं, व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, राइट। सो एक लर्निंग पॉइंट में बताने जा रहा हूं, उसको नोट डाउन करिएगा आप लोग, ठीक है, और मैं लिखूंगा अभी नोटपैड पे कि जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ओके, जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट ऑलवेज ब्रेक विद द ह्यूज कैंडल गाइस, ओके, कीप इन माइंड, राइट इट डाउन ऑन योर नोटपैड और wherever you are noting it down. जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वेदर इट इज सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इट ब्रेक्स विद अ ह्यूज कैंडल गाइस, ओके। सो दिस इज अ ऑब्जर्वेशनल पॉइंट विच आई एम शेयरिंग विद यू, ओके, यू शुड नोट इट डाउन। आप अगर पता लगाना चाहते हो ना, बहुत से लोग, आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हो, हाउ टू आइडेंटिफाई द फॉल्स ब्रेकआउट, हाउ टू आइडेंटिफाई द रियल ब्रेकआउट्स, ओके। सो इसका एक ही तरीका है कि आप जहां पे ब्रेकआउट आता है ना, आप यहां पे देखो कि कैंडल का साइज कितना है, इज इट अ बिग कैंडल और इज इट अ स्मॉल कैंडल, एंड इफ इट इज अ बिग कैंडल देन गाइज दैट लेवल शुड बी रीटेस्टेड ऑल्सो वंस, लाइक हियर, ठीक है। सो यहां पे क्या हुआ गाइज, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ओके फाइन, मार्केट यहां से नीचे आया और मार्केट वापस उसी ट्रेंड लाइन पे जाके रीटेस्टिंग करी मार्केट ने और क्लोजिंग दे दी नेगेटिव कैंडल के साथ, अगले दिन गैप डाउन, फिर मार्केट वहीं तक गया गाइज, एग्जैक्टली वही हाई बनाने गया और वहीं से रिवर्स हो गया। सो अभी मैंने सिर्फ आपके सामने एक सिंगल ट्रेंड लाइन खींची और उससे हमें 2 बार रिवर्सल्स मिल गए गाइज। इज इट लॉजिकल और नॉट, टेल मी, इज इट लॉजिकल गाइज? Yes, sir. क्या आपको ये लॉजिकल लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये फालतू की बातें कर रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं होता। Guys, all of you mute.
एक एक करके रिप्लाई करिए, रिप्लाई वन बाय वन। यस फरहान, व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. फरहान, यू आर फ्रॉम विच सिटी? Bhopal, sir. Okay, from Bhopal. Good. Okay, so Yogesh, kindly mute. Okay, Yogesh, mute from your side. Okay, so guys, केवल एक ट्रेंड लाइन को डालने से हमें ये पता चल गया कि हमें कहां पे सेल करना है, कहां पे बाय करना है। ओके, जस्ट वन ट्रेंड लाइन। सो आप समझ सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन आपको किस लेवल का ट्रेडर बना सकती है। इट इज जस्ट अ सिंगल ट्रेंड लाइन गाइस। आई हैव जस्ट ड्रॉन 2 ट्रेंड लाइंस ऑन माय चार्ट। केवल 2 ट्रेंड लाइन बनाने से अगर आप ये पता लगा सकते हो कि रिवर्सल्स कहां से आएगा, सो आप समझ सकते हो जब आप सारे टूल्स अप्लाई कर दोगे विच आर इंपॉर्टेंट, तो आप किस लेवल का रिवर्सल पता लगा सकते हो। यू वेरी वेल नो इन एडवांस, राइट। अब गाइस यहां पे मैं क्या करता हूं, अब मैं इन ट्रेंड लाइंस को डिलीट करके अब मैं बॉटम से कुछ बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एंड कनेक्टिंग इट विथ दिस पॉइंट। ठीक है, अब गाइस अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, इस ट्रेंड लाइन को एक अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा था काफी समय से। ओके, लगभग ये ट्रेंड लाइन कहाँ से बनी गाइस? मिड ऑफ अप्रैल से। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, राइट। यहां पे कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन मिल गया। ठीक है, जब इस ट्रेंड लाइन को यहां पे ब्रेकडाउन मिल गया गाइस, तो अब हम लोग जो जिद करते हैं मार्केट के साथ, ओके, वी से दैट ओके मार्केट विल कम डाउन। मार्केट कहां तक जाएगा नीचे? मार्केट को तो ऊपर आना ही है, राइट। मार्केट कहां तक जाएगा ये तो पहली बात कोई पता लगा नहीं सकता गाइस, ओके, बिकॉज इट इज मार्केट, इट कैन बीट एनीवन। ओके, आप और हम तो बहुत छोटे लेवल के ट्रेडर हैं, और बल्कि हमारा कोई लेवल ही नहीं है गाइस। जस्ट 1 लाख 2 लाख और 5 लाख रुपीज से अगर हम सोच रहे हैं दैट वी आर अ बिग ट्रेडर, ये हमारी गलत फहमी है गाइस। ओके, सो हमारा तो कोई लेवल ही नहीं है मार्केट में। 1 2 5 लाख 10 लाख वाले सोच रहे हैं अगर हमारा कोई लेवल है, सो इट इज नथिंग गाइस। ओके, ट्रेडर्स विथ CRs ऑल्सो लूज एंड लूज अ बिग अमाउंट। तो फिर हमारा तो आप छोड़ दो, जितना हमारा कैपिटल है उतना उनका 1 घंटे में लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हम ये सोचना छोड़ दें कि हम बहुत बड़े लेवल के ट्रेडर हैं, ये तो गलत फहमी दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। ठीक है, हमें जिद नहीं करना है गाइज। हमें पता चल चुका है कि अब मार्केट यहां से वीक हो चुका है। ठीक है, वीक क्यों हो चुका है? व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है गाइज कि आप देखोगे कि मार्केट ऑलमोस्ट अप्रैल में इसने जो लो बनाया था अप्रैल 2021 में, उस लेवल को गाइस इसने ब्रेक कहां पे करा और किस तरीके से ब्रेक करा, ये देखो आप। ठीक है, अप्रैल 2021 में जो लो बना था उसको ब्रेक मिला लगभग कहीं 8 जुलाई को। ठीक है, इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद गाइस अगर ब्रेक मिला तो हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि अब जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस से ट्रेड नहीं करने लगता, इट इज कंप्लीटली बेयरिश नाउ ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, बट ये 15 मिनट का चार्ट है। और इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मार्केट अब इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं कर रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी बुलिश ट्रेड इन निफ्टी। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? चलिए, अब ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है गाइस टू आइडेंटिफाई हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, तो यहां पे गाइस अगर आप देखने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द अपर साइड, ठीक है, हम अपर साइड से देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया गाइस। तो जब इसने ये लोअर हाई बना दिया तो हमें अब अलर्ट हो जाना है कि मार्केट में अब यहां से गिरावट आ सकती है, क्योंकि पिछला हाई ब्रेक नहीं हुआ है। द प्रीवियस हाई इज नॉट येट ब्रोकन, राइट। सो यहां पे जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है वो होती है प्रीवियस लो के नीचे। और आप देख सकते हो गाइस कि जो प्रीवियस लो बना था वहीं तक दोबारा रीटेस्ट करने मार्केट आया था। ठीक है,
अभी मैंने कोई भी स्पेशल टूल्स की या उसकी बात नहीं करी, सिंपल मैं आपको एक लॉजिकल पार्ट बता रहा हूँ जो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या करा, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से फॉल दिया और वापस जहां तक वो ऊपर आया गाइस वो वही लेवल था जहां से पिछली बार हमारा ब्रेकडाउन आया था। ओके, सो जब मार्केट इस लेवल पे आया, ठीक है, तो हमें क्लियर कट पता चल गया दैट दिस इज द लेवल ऑफ ब्रेकडाउन। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी लेवल ब्रेक होता है बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होता है, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बनी, ये वाली कैंडल देखो आप, इट इज अ बिग कैंडल। मार्केट नीचे आया, ठीक है, ऊपर उसी लेवल तक आया गाइस, रेजिस्टेंस लिया और वहीं से एक तगड़ा फॉल देखने को मिला, राइट। तो अभी कुल मिला के जो स्ट्रक्चर चल रहा था गाइस ऊपर से लेके अभी तक, देखिए हाई बना, फिर लो बना, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। लेकिन अभी गाइस जो स्ट्रक्चर में चेंज आया है वो आप देखोगे यहाँ पे लो बना, हाई बना जो कि पिछले वाले हाई से ऊपर बना, और अब जो स्ट्रक्चर बना वो बन गया हायर लो का। यानी कि गाइज हमें अब इंडिकेशन मिल गया कि अब स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, यानी अब ट्रेंड में चेंज आ सकता है, एक इंडिकेशन हमें मिल चुका है, राइट। क्योंकि स्ट्रक्चर देखते हुए कि मार्केट ने अब हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो मंडे को गाइज अगर ये वाला हाई ब्रीच हो जाता है मॉर्निंग सेशन में, ठीक है, विच इज समवेयर अराउंड 750 760, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने एक बार आ जाएगा? कैन वी से और नॉट? सर आ सकता है। बताइए ऑल ऑफ यू। आ सकता है सर। ठीक है, आ सकता है, ठीक है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। हम ये नहीं कह सकते कि आएगा ही आएगा, आ सकता है, ठीक है, इट इज अ करेक्ट आंसर। 100% अगर आपसे कोई बोल रहा है कि ये चीज होती है मार्केट में, 100% वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ही इज मेकिंग यू फूल गाइस, दैट्स ऑल। अगर कोई आपको 100% बोल रहा है, नथिंग इज 100% इन दिस मार्केट गाइस, बिलीव मी, ओके। इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, इस मार्केट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वही सब कुछ है, 100% कुछ भी नहीं गाइस, ठीक है। चलिए अब गाइज मुझे ये चीज तो पता चल गई कि ये लेवल जो है ये मेरा रिवर्सल हो सकता है कल के दिन में, ठीक है। अब मैं इस रिवर्सल को कंफर्म कैसे करूं कि ये रिवर्सल यहीं तक आएगा या यहीं से मार्केट रिवर्स होगा? तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसमें दो ट्रेंड लाइन और प्लॉट करूंगा। एक तो मैंने प्लॉट करी ये हाई को हाई से मिलाते हुए, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहां से प्लॉट कर दी हाई टू हाई ज्वाइन करते हुए, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन गाइज मैंने प्लॉट कर दी यहां पे ये वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए। सो गाइज अब आप मुझे खुद बताइएगा कि क्या जो हाई निफ्टी ने कल बनाया था फ्राइडे को, ये हमें पता था या नहीं था? अगर ये ट्रेंड लाइन हमारे चार्ट पे होती तो क्या ये पॉइंट हमें पता था या नहीं था? पता था। गाइस ध्यान से देखिए, समझिए चीजों को, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता तो बिल्कुल पूछिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर चीज लॉजिकल बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो क्या ये पॉइंट हमें पहले से पता था? डू वी नो दिस पॉइंट इन एडवांस और नॉट? टेल मी, डू वी नो दिस पॉइंट इन एडवांस? Yes. How many are there? 37. Guys participate करिए, otherwise I will close session very very soon guys. मैं बता रहा हूँ I will close the session very soon. Okay. So participate करें all of you. Some good people are also here. Some experienced traders are also here right now, I can see. Okay. So I want you also to participate. Okay, some experienced traders also are here guys. Okay, so I want to ask any one of you, might be
Okay, Mr. Sunjeet Machra, can you please unmute? Yeah, sure, sir. Yeah, and can you please give your opinion about this? We should have been aware of a possible reversal, especially watching the parallel candles, the green and the red candle, which is just touching the trend line. So do you think that if this trend line we would have drawn on It certainly would have really helped on to get थर्सडे, this target. या अगर हमने Yeah. थर्सडे को ये ट्रेंड लाइन बनाई होती तो फ्राइडे को जब मार्केट इन लेवल्स पे कहीं पे आया था अराउंड दिस Right. लेवल्स, Right, So right. This is exactly what I was saying, sir. This is exactly what I was saying. सो ये रिवर्सल हमें पता था, राइट? बिल्कुल. ठीक है. और अब आप लोग ये बता दो मुझे कि कल अगर मंडे को मार्केट में पहला कैंडल लगभग यहाँ पे खुल जाता है, Right. अब आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन तक आ सकता है, जो कि एक अगेन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है. Absolutely, possibly. ठीक है. अभी मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइंस बनाई गाइस, आई हैवंट ड्रॉन एनीथिंग एल्स, इट्स ओनली ट्रेंड लाइंस गाइस. ठीक है. सो ट्रेंड लाइन का पावर क्या है, ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है गाइस, ये मैं हमेशा हर वेबिनार में बोलता हूँ. ठीक है. और मैं आप लोग को बना के भी बताता हूँ. ठीक है. मैं केवल आप लोग को ज्ञान बांट के नहीं चला जाता हूँ कि ट्रेंड लाइन ऐसी होती है, ट्रेंड लाइन का पढ़ लो आप, ट्रेंड लाइन से आपको बहुत मदद मिलेगी. मैं आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके दिखा रहा हूँ, एंड इट इज़ हैपनिंग इन मार्केट. ओके. ऐसा नहीं है कि केवल मैंने आपको थ्योरी बता दी और उसके बाद में चला गया. आई एम शोइंग यू द लाइव पार्ट. ओके. सो मार्केट अगर इन लेवल्स को कर इसके ऊपर कहीं खुलता है, यानी कि ये जो लेवल है इट इज समवेयर अराउंड 15,735 740, एंड दिस इज निफ्टी फ्यूचर चार्ट. तो अगर कल निफ्टी 735 740 के ऊपर खुलता है और पहला 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है गाइस, तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे वो भी पॉजिटिव हो चुका है. ठीक है. स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि हाई लो और लोअर हाई का पैटर्न बन चुका है. तो डेफिनेटली एक हायर हाई बनने की पॉसिबिलिटी पूरी बन रही है यहाँ पे, राइट? ठीक है. और मार्केट कहाँ तक अब जाएगा ये भी हमें पता है कि मार्केट इन लेवल्स पे आके कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रेंड लाइंस मीट आउट कर रही हैं गाइस. आप देख सकते हो यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन मीट आउट कर रही हैं, यानी कि ये लेवल ऐसा लेवल है अगर हमने बाइंग कर रखी है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा एक बार. वी हैव टू बुक अवर प्रॉफिट्स. ओके. क्योंकि ये लेवल हमें पहले से ही पता है कि लेवल है और यहाँ पे मार्केट आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे रिएक्ट करेगा. सो ये लेवल की अगर मैं बात करूँ तो समवेयर अराउंड गाइज 845 टू 860. सो 15,845 टू 860 इज नाउ अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी फ्यूचर कल के लिए या माइट बी फॉर ट्यूसडे. हो सकता है कल मार्केट यहाँ तक ना आए, सो माइट बी फॉर ट्यूसडे और वेडनेसडे. जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा इट विल डेफिनेटली रिएक्ट एट दिस पॉइंट. ओके. सो अब ये रिवर्सल जो है ये हमें पहले से ही पता है, एंड वी कैन डेफिनेटली रिएक्ट ऑन दिस रिवर्सल एज पर द लेवल्स. ठीक है. चलिए, ये तो बात हो गई ऊपर की. अब गाइज अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक ट्रेंड लाइन बना दूं, और अब आप लोग ये मत कहना गाइज ये मैजिक की बात हो रही है, दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज अ रियल पार्ट. तो क्या एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया है? लिया है कि नहीं लिया गाइस? यस सर, लिया है. एवरीवन एबल टू सी गाइस? यस सर. यस सर, लिया है. ठीक है. अच्छा गाइस, मैंने इसमें क्या करा, मैंने इसमें दो पॉइंट्स को अटैच करा यहाँ पे, सिंपल. ठीक है. और इन दो पॉइंट्स को अटैच करके मैंने सिंपली जो फ्राइडे का लो था वो मैंने आइडेंटिफाई पहले से ही कर लिया था गाइस. और ऐसा नहीं कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप YouTube पे जाइए, मेरा वीडियो चेक करिए. ठीक है. YouTube चैनल हमारा जो है, अगर आप जाएंगे और यहाँ पे वीडियो चेक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ. इस वीडियो में क्लियर कट मैंने बता दिया था कि 650 विल बी द बाइंग जोन फॉर अस. ओके. 650 विल बी द बाइंग जोन फॉर अस, इट विल नॉट बी द सेलिंग जोन. ठीक है. 650 क्या है हमारे लिए? बाइंग जोन है. और ये 650 का जो लेवल था गाइस, ये मैंने दिया था, इट्स अ बुल ट्रैप और जस्ट अ करेक्शन. ठीक है. इस वीडियो को आप चेक करिएगा गाइस, ये मैंने फ्राइडे
ओपनिंग के पहले अपलोड करा था और इसमें क्लियर कट बोला था कि 650 से हम बाय करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट। और यहाँ पे हमने और हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करा था गाइस, क्योंकि ये लेवल हमें पहले से ही पता था कि मार्केट यहाँ तक आके रिवर्स हो सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब क्यों रिवर्स हो सकता है गाइस, उसका भी लॉजिक है, क्योंकि आप देख सकते हो प्रीवियसली मार्केट 2 बार यहाँ से कितना शानदार रिवर्सल ले चुका है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली जब हम अपर साइड से ये पॉसिबिलिटी मानते हैं कि मार्केट 2 बार ऊपर से रिवर्स हो चुका है, तो थर्ड बार भी हो सकता है। उसी तरीके से जब यहाँ मार्केट थर्ड टाइम आया तो डेफिनेटली यहाँ पे हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाइंग करेंगे, और बाय करना यहाँ पे लॉजिकल है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ से लगभग गाइज लगभग 70 to 80 पॉइंट्स का अपर साइड देखने को मिला हमें, विच इज नॉट ए स्मॉल प्रॉफिट इन निफ्टी, इट्स अ बिग प्रॉफिट, ठीक है। सो ये एडवांस प्रिपरेशन थी, यानी कि गाइज सिंपल सी बात अगर मैं करूं तो आपको फ्राइडे का लो भी पता था और आपको फ्राइडे का हाई भी पता था कि नहीं पता था गाइज, बताइए, डू यू नो इन एडवांस और नॉट? Yes. Yes, sir. Is it something logical or is it illogical? Tell me. So you know this point also कि यहाँ पे हमें बाय करना है, and you know this also कि यहाँ पे हमें सेल करना है। What else you need guys? हमें यही तो चाहिए। हमें अगर यही पता चल जाए कि हमें बाय कहाँ करना है और हमें सेल कहाँ करना है, तो हमारा ट्रेडिंग करियर बन चुका है। What else we need? इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा और मार्केट कहाँ तक जाएगा। अगर 2 चीज़ें हमें पता चल गई, देन व्हाट एल्स वी नीड, नथिंग, लाइफ सेट हो गई, राइट। सो गाइज ये जो आप देख रहे हो ना, इसके लिए बहुत सारे कंफर्मेशन टूल्स भी लगते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आपको देखने में लग रहा होगा और आप कल से बिल्कुल ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ओवर कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड करने लोगोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कंफर्मेशनल टूल्स का यूज भी होता है, ठीक है, जिसमें से पहला टूल है गाइज आपका फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज इट इज़ अ लेंदी टॉपिक, ओके, बट आप लोग डेफिनेटली यूट्यूब पे इसको सर्च करके इसको वर्कआउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं आपको जितना अपनी तरफ से बेस्ट बता सकता हूँ मैं उतना आपको यहाँ पे बताऊँगा, राइट। बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट मैं यहाँ पे आपको पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा, सब कुछ 1 घंटे 2 घंटे के वेबिनार में बता दूंगा, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइज, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ये सारी चीज़ें सीखने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है गाइज। यू नीड 1 month फॉर दिस, ओके, एंड आई कैन नॉट टीच यू इन जस्ट 1 or 2 hours। सो मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं और उससे पैसा डेली बेसिस पे बना रहे हैं, ठीक है। बट आपको इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, और आपको अगर सारी चीज़ें फिल्टर्ड वे में चाहिए, इफ़ यू नीड एवरीथिंग इन फिल्टर्ड वे, मतलब आपको बिल्कुल वही चीज़ें सीखनी है जिससे मार्केट में पैसा बनता है, फालतू चीज़ें नहीं सीखनी, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको हमारे साथ टाइम देना पड़ेगा, आपको MVM फैमिली को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब उसके बाद आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। और फॉर दैट यू नीड 1 month टाइम गाइज। 1 महीने का समय मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि 1 महीने का समय लगता है गाइज, फ्रैंकली स्पीकिंग 1 month का टाइम हमें चाहिए टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, दैट टू अगर आप बिल्कुल प्रॉपरली टाइम डिवोट करके चल रहे हो तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल मेंटर ने हमें पढ़ा दिया और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, तो ये गलत फहमी गाइस, उससे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई सिंपली निफ्टी की बात। तो गाइस जब हम यहाँ पे एक और टूल अप्लाई करते हैं जो कि हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, तो यहाँ पे क्लियर कट हमें पता चलता है गाइस कि मार्केट किन लेवल्स तक ऊपर में जा सकता है और कहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो अभी तो मैंने बात करी केवल एंट्री और एग्जिट की, लेकिन एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट एग्जिट भी आपको पता चल सकता है, वो भी एडवांस में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेंड लाइन खींच दी और आपको ये पता चल गया, आपको कहाँ पे एंटर होना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ तक आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी चीज़ें आपको एडवांस में पता चल सकती हैं, एंड इट इज़ 100% पॉसिबल, ठीक है। चलिए एक और चार्ट मैं आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ यहाँ पे। लेट अस टेक बैंक निफ्टी। आई विल ऑल्सो टेक सम
scripts of MCX also, because many people asked for MCX, because many are here are MCX traders also. So how many of you are trading only MCX? Can reply in the chat box once. Retracement, what point we will need to consider as buying or selling? Pardon? In the retracement, Mm-hmm. Fibonacci retracement, what junction or what point is considered as buy or sell and target? In retracement, there are n number of factors. Like when we draw retracement, then we need to check that that particular level is being given respect how many times earlier. This is the first point. Okay. Second point is that is there any kind of trend line which is also coming on that same level? If yes, then that is the maximum point of probability where we can take our entry, right? Getting the point, Mr. Kumar? Yes, but the 0.3 you showed some 0.38 something like that, right? Yes. So we should consider 0.3 as a buying or buying zone, or is there any other ratio that we will need to consider for? No. Fibonacci has some ratios like 23%, 38%, 50%, 61%. So that ratios tell us the level where we can take entry or exit. Okay. So you can see, I'm drawing that chart once again. You can see that this 38% is showing us that if we are buying somewhere around 740, मतलब अगर हम 615, 640, 650 के आसपास हम बाई कर रहे हैं, तो पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 15700 का और दूसरा टारगेट होना चाहिए 15740 का. समझ में आ रही बात? Yes. Are you getting the point? Yes. So these are the two targets for us. This is the target number 2. This is the target number 1. Okay. Okay. Thanks. Okay, guys. Now I am drawing a chart of Bank Nifty. Okay. So now, guys, I am just drawing some simple lines from here. Okay. Okay, I am drawing this line from here. Okay. And I am drawing this line from here. So guys, now you tell me the low of Friday. Is it visible to us in advance or not? Is it? क्या फ्राइडे का लो हमें पहले से ही दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? Yes, guys. Yes, sir, दिख रहा था. Right? Yes, sir. Guys, it's very simple and very effective also. ठीक है? सिंपल होने से मतलब नहीं होता है, ठीक है? उसका इफेक्ट कितना है मार्केट में वो इंपॉर्टेंट. आप देखिएगा एग्जैक्टली जो लो बना है और एग्जैक्टली हमारी जो ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्ट रिवर्सल वहां से हमें देखने को मिला. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड इन दैट वीडियो ओनली दैट 35, 200, 100 इज आवर बाइंग एरिया. ओके, you can check that video for Bank Nifty also. I have told both the scripts, Nifty and Bank Nifty, in advance that what will be the buying levels and till where we should book our targets, right? So अब guys हमें सिंपल सी बात ये पता है कि मार्केट अब जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता सेलिंग में नहीं जाएगा, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता बाइंग नहीं जाएगा. So in between this levels guys, it is simply a what kind of market it is? Range bound. It's a range bound market. Okay. So हमें पता होना चाहिए guys which kind of market we should trade, which kind of market we should avoid. सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. Okay. One more trend line guys we have drawn. और अब यहाँ पे probability हमारी high हो जाती है because 1 time, 2 time.
2 टाइम ऑलरेडी गाइज मार्केट यहां से ऊपर जा चुका है, ओके 2 टाइम ऑलरेडी यहां से मार्केट ऊपर रिवर्स हो चुका है, ओके सो थर्ड टाइम प्रोबेबिलिटी यहां पे बिल्कुल बनती है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है. इट इज ओनली अ प्रोबेबिलिटी. आई एम नॉट सेइंग इट इज 100% कंफर्म दैट मार्केट यहां से इस बार भी रिवर्स होगा, बट इट इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है. एंड फॉर दैट गाइज, फॉर कंफर्मेशन वी हैव टू लुक एट अ एंट्री ट्रिगर एट दिस एरिया. अगर हमें इस एरिया में कोई एंट्री ट्रिगर मिल जाता है देन वी कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हियर. ठीक है, और आप देख सकते हो गाइज वी ऑलरेडी गॉट वन सॉलिड एंट्री ट्रिगर हियर इटसेल्फ. व्हाट इज दैट? दिस इज अ काइंड ऑफ अ बुलिश पिन बार, राइट? सो एंट्री ट्रिगर एट एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स अ जैकपॉट ट्रेड फॉर अस. ठीक है, सो आप खुद भी जैकपॉट ट्रेड बना सकते हो, आप खुद भी HNI ट्रेड बना सकते हो, आप खुद भी प्रीमियम लेवल्स निकाल सकते हो. ओके, यू डोंट नीड टू पे इन थाउजेंड्स इन लैक्स फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स. इट इज पॉसिबल. यू कैन डू इट बाय सिटिंग एट योर होम. यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, राइट? बट फॉर दैट गाइज यू नीड टू फोकस ऑन लर्निंग. ठीक है, इतना आसान नहीं है ये जितना भी आपको दिख रहा है. ठीक है, इतना आसान नहीं है. फॉर दैट यू नीड मेनी कन्फर्मेशंस, फॉर दैट यू नीड टू डिवोट टाइम. ठीक है, अब गाइज यहां पे जो लो बना है और जो हाई बना है, ठीक है, अब यहां पे सिंपली अगर मैं ये देखने की कोशिश करूं कि मंडे को बैंक निफ्टी कौन से लेवल के ऊपर बुलिश होगा, सो दिस इज द लेवल. एम आई करेक्ट? और यहां पे वो फंडा फिर से आपको दिख रहा होगा कि द लेवल विच इज ब्रोकन इज विद अ बिग candle. Are you able to see the candle here? ठीक है, so candle broken, came down, retest and again fall. So what does it mean? That tomorrow if bank nifty is opening somewhere around here, now tell me, we will buy, we will wait or we will sell? Tell me. अगर कल बैंक निफ्टी यहां पे कहीं ओपन होता है, we will buy, we will wait or we will sell? कंफर्मेशन कैंडल मिलने तक वेट करेंगे सर. कई सभी लोग रिप्लाई करिए. जो लोग रिप्लाई नहीं कर सकते, जिनको बोलना नहीं आता है, वो लोग वेबिनार को छोड़ के चले जाए. ठीक है, ऑल शुड रिप्लाई गाइस. सर 15 मिनट तक देखेंगे, उसके बाद कभी ट्रेंड लाइन को उसने ऊपर करा तो फिर बाय कर सकते हैं. राइट. यस, मिस रश्मि सरोलकर, what we will do? Unmute yourself. After 15 minutes, We knowing will wait. about the trade line, we will take a buy call. Good. ठीक We है. will wait for confirmation. Okay. Good. All right guys. So I think all of you got the logic here कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, क्लोजिंग देने का मतलब ये नहीं है कि हमारा बाय ट्रेंड कंफर्म हो गया. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा. क्लोजिंग देने का मतलब ये नहीं है कि हमारा बाय ट्रेड यहां पे कंफर्म हो गया. इट इज नॉट श्योर. क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि अब ये बाय टेरिटरी में एंटर हुआ है, बट स्टिल वी नीड अ कंफर्मेशन ऑन दिस. तो कंफर्मेशन कैसे मिलती है? जब इस कैंडल के हाई को अगला कैंडल ब्रीच आउट करता है, ओके, तब हमें यहाँ कंफर्मेशन मिलती है और तब हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर. ठीक है, सो गाइज इट्स वेरी सिंपल फॉर दोज पीपल हु आर मेकिंग इट सिंपल. और बाकी हम अगर मैं इसमें चाहूँ तो बहुत सारे इंडिकेटर्स डाल दूँ, राइट? मैं यहाँ पे MACD डाल दूँ, ओके, then I place RSI here. Okay, will it make any sense guys? Tell me. अभी तक जो लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, आप मुझे खुद बताओ, ये RSI और MACD डालने से क्या अभी तक आप लोगों ने पैसा बनाया है? Oh, it actually sometimes confuses.
See, sometimes it confuses, you are saying as per your experience, but for me I think it confuses every time. Okay. Because प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है गाइस कि जिसको अगर आपने सीख लिया, ठीक है, तो आपने फिर आप किसी भी स्क्रिप्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हो. लेट इट बी एनी मार्केट गाइस. आप एग्री कमोडिटीज में काम करते हो उसमें अप्लाई कर दो, आप एमसीएक्स में काम करते हो उसमें अप्लाई कर दो, आप एनएससी में काम करते हो उसमें अप्लाई कर दो, राइट. बट अगर आप लोग इंडिकेटर्स के चक्कर में पड़ रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. और स्पेशली जो हम बॉटम बाइंग और टॉप सेलिंग की बात करते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल एनालिसिस ही दे सकता है, और कोई दुनिया में ऐसा सॉफ्टवेयर अभी तक बना भी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि बनेगा. ठीक है, आई डोंट थिंक सो दैट वी विल गेट एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हु विल गिव अस एग्जैक्टली द बॉटम बाइंग एंड द टॉप सेलिंग. आप लोगों को ऐसा लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बन सकता है? नहीं होगा सर, है ना, पॉसिबल नहीं है गाइस. क्योंकि ऐसा सॉफ्टवेयर मैं कहता हूँ अगर 10 करोड़ में भी मिल रहा होगा तो लोग ले लेंगे, क्योंकि उससे उनकी लाइफ बन जाएगी ना. बट ऐसा होना नहीं है गाइस, ऐसा होना नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो लेवल्स हम बना रहे हैं ना, ये हम मैनुअली बना रहे हैं. ठीक है, दिस लेवल्स वी आर मेकिंग मैनुअली, सो इट इज समथिंग विच इज यूनिवर्सल गाइस. ये आपको किसी भी स्क्रिप्ट में काम करेगी और कहीं भी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. लेट मी टेक क्रूड ऑयल. Crude oil is something which is traded by many of the traders, right? ठीक है, तो अगर हम इसको क्रूड ऑयल में देखने की कोशिश करते हैं, what will happen? Let us see. Let us check. Okay. क्रूड ऑयल में मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स को मैंने अटैच कर दिया. ठीक है, I have attached 2 points here. सिंपली. तो अब आप यहां पे देखिए गाइस, क्रूड ऑयल में क्या हुआ कि प्राइस हैड स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ओके, गोइंग अप, कमिंग डाउन, गोइंग अप, कमिंग डाउन, गोइंग अप, कमिंग डाउन, गोइंग अप, कमिंग डाउन, गोइंग अप, फाइनली ब्रोकन दिस लेवल. ओके, नाउ लेट अस चेक द एक्टिविटी हियर. यहां पे हुआ क्या, जब इसने ब्रेक करा तो यहां पे हुआ क्या. जो कंडीशन मैंने बताई थी गाइस, क्या यहां पे वैलिड हो रही है या नहीं हो रही? इज इट वैलिड हियर? हो रही है सर जी. यस सर, यस 100% सर, 100% वाले गाइस ये बहुत सिंपल से पॉइंट हैं, ठीक है, और इसमें कुछ मुझे बताने से ऐसा नहीं होगा कि आप लोग सीख जाओगे आज ही सब कुछ और फिर आप लोग बिल्कुल कल से प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं बहुत अच्छे से कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम में क्यों लेता हूँ. इतना आसान नहीं है गाइस ये सब चीज़ें, ठीक है. और बहुत से लोग इस चीज़ों को डरते भी हैं. अपने वेबिनार्स आप लोगों ने कई सारे ज्वाइन भी करे होंगे और आपको पता है कि वहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है. फ्रैंकली स्पीकिंग, लोग लास्ट तक रुकते भी नहीं हैं. और डेफिनेटली आज अभी अगर 1 घंटा हो चुका है और ऑडियंस लगभग पूरी हमारे साथ बनी हुई है, यानी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिल रहा है. एम आई करेक्ट और नॉट? यस. ठीक है, तो लोग गाइस संडे का दिन लोग बर्बाद नहीं करते हैं फालतू की चीज़ों में, ठीक है. और ये स्पेशली वेबिनार्स तो लोगों के लिए वो होता है कि ठीक है चलो देख लेते हैं, कुछ शायद सीखने को मिल जाए, राइट. तो गाइस अगर आपको लाइव बनानी है, क्योंकि गाइस स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेफिनेटली बना भी सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है. बिलीव मी, दिस इज अ रियलिटी. ठीक है, सो गाइस नाउ यू टेल मी, crude oil is a completely buy or a slightly buy or bearish? Slightly buy up to the trend line. Who said this? This is Jay. Jay, right. Okay, now you can see that Mr. Jay answer was perfectly correct, absolutely fine. Okay, now Mr. Jay know that above this trend line when crude oil will start trading, I will go completely bullish. Otherwise he know then again it can fall till this level, right? That's true. Okay, so now at least Jay can identify that above 5650 only he will go for a buy in crude oil.
Okay, otherwise it market is opening gap up also, he will book his profits around 5650. Is it clear? Correct. Right? So at least he know where to book, where to place trades, and where to exit. He knows the entry and exit point at least. Now guys, if I'm drawing one more trend line from here, now you tell me. Now you tell me what should be your proper stop loss and what should be your target on the upper side. Tell me. Stop loss near 5530 and target should be 56. Sir, that U-turn will be the stop loss and trend line will be the target. Absolutely fine. So guys, you can see that I have just drawn a trend line and exactly market has taken support at this level. Okay, and this is a advanced trend line guys which I have drawn here. Okay, ऐसा नहीं कि मैंने अभी आप लोग को सिर्फ वेबिनार कर रहा हूँ इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है और आप लोग खुश हो जाओगे कि ऐसा ऐसा होता है. ठीक है, इट इज़ अ लॉजिकल ट्रेंड. यू कैन ड्रॉ ऑन योर ओन चार्ट ऑल्सो. ओके, सो आई एम नॉट शोइंग समथिंग जस्ट फॉर द पब्लिसिटी और समथिंग. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो दैट आई हैव ज्वाइंड अ पॉइंट विच इज ऑलमोस्ट अराउंड स्टार्टिंग ऑफ जुलाई. ओके, 1st of July, and then I have joined a point which is around 7th of July, and we got a low on 9th of July. Is it clear? तो अब यहां से क्रूड ऑयल के लिए जो ट्रेड बनता है दैट इज अ परफेक्ट ट्रेड गाइस. क्यों ट्रेड परफेक्ट है? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को इसने कितने बार रिस्पेक्ट दिया गाइस? हाउ मेनी टाइम्स इट इज गिवन द रिस्पेक्ट? 3 times. ऑलमोस्ट 3 टाइम्स गाइस. ठीक है, प्लस में गाइस यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, बाइंग के लिए कोई एंट्री ट्रिगर चाहिए होता है तो दिस इज एंट्री ट्रिगर फॉर अस, हैमर पैटर्न. राइट, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, हैमर के नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है. ठीक है, और टारगेट आपको मिनिमम इस ट्रेंड लाइन तक का रखना है विच इज अराउंड 5645 5640. सो नाउ यू टेल मी दैट 5530 is our stop loss somewhere around. Okay, or let us take 5529 below the round figure. Okay, ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट है. एंट्री मान लेते हैं आप यहां कहीं लेते हो, हियर. See the risk reward guys. Can you see? Can you see guys risk reward? Almost guys 1:1.5 1.6. True. Okay, and it's a good trade guys. I think it's a good trade for crude oil, right? Because your stop loss is also logical and your target is also logical. सो अब अगर हमें मालूम है कि ये 5640 5650 तक जा सकता है, लेकिन हमारी आदत क्या होगी गाइस, हमें 10-20 पॉइंट मिलेंगे और हम पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे कि यार 2000 रुपए तो मिल गए. ठीक है, अपना काम हो गया. अपना काम नहीं हो गया गाइस, आप अपने आप को वीक कर रहे हो. आप प्रोफेशनल ट्रेडर की लाइन पे नहीं जा रहे हो, आप सिंपली एक ट्रेडर बन रहे हो जो एक टाइम पास के लिए ट्रेडिंग कर रहा है कि 2000 रुपए आ गए, आई विल एंजॉय टुडे, कल देखेंगे क्या होता है. बट इसी ट्रेड में अगर आप बने रहते हो तो टिल इवनिंग यू कैन अर्न 7000 7200 और 7500, एंड दैट ट्रेड व्हेन इट विल हिट योर टारगेट, बिलीव मी गाइस, आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो आपको लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं आएगा. बिलीव मी दिस ऑन दिस पॉइंट, कि जब आप यहां पे एंट्री लोगे और जब आप यहां पे एग्जिट करोगे ना तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो आपको लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक सिस्टम था जिसको आपने फॉलो किया और आप उसी हिसाब से एग्जिट हुए. समझ में आ रही बात?
So start acting like a professional trader. Don't act like a newcomers, okay, in the market, because न्यूकमर्स कभी भी पैसा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाते हैं. शुरू शुरू में बना लेते हैं, दैट इज गुड, बट उनका कोई लॉजिक नहीं होता, उनके पास कोई रीजन नहीं होता उनकी ट्रेड का. यहाँ पे जो मैं ट्रेड आपको बता रहा हूँ, इट इज 100% लॉजिकल ट्रेड गाइस, 100% लॉजिकल. किसी को ऐसा लगता है कि ये ट्रेड लॉजिकल नहीं है? एनी ऑफ यू थिंक अबाउट दिस? Yes guys, tell me. No, it makes sense. Yeah. Right? Right. So guys, it is, trading is very very simple. Guys, all of you turn off your camera please. Who is okay. Now guys, this is about the reversal points. ठीक है, अब आप लोग का कोई स्क्रिप्ट हो जिसमें आप लोगों को क्वेरीज हो, सो यू कैन आस्क मी नाउ. सर विप्रो. Okay, one by one I will take. Okay, so don't be in hurry. Okay गाइज, विप्रो के अंदर ऑलरेडी न्यूज फ्लो हो रही है, आप लोग को मालूम है. ओके, सो लेट मी टेक इट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम. ठीक है, फॉल आ चुका है, कहाँ तक आएगा? देखिए, मैंने अभी आपको जो ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है ना गाइज, वो केवल 10% बताया है. ठीक है, इससे ज़्यादा मैं यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ. ट्रेंड लाइन इज़ अ वेरी वेरी बिग टॉपिक. सो for that you need time. ट्रेंड लाइन बनाना भी कई लोगों को सही से नहीं आता है गाइस. ठीक है, सो ट्रेंड लाइन बनाना भी अपने आप में एक एक्सपर्टीज वाली बात है. ठीक है, ट्रेंड लाइंस लोग प्लॉट तो कर देते हैं, बट दे डोंट नो विच पॉइंट टू ज्वाइन, हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू लॉक इट, कुछ नहीं पता. राइट, अब देखिए विप्रो का चार्ट है, मैंने केवल एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है. कहाँ से ड्रॉ करी है? मैंने ड्रॉ करा इसको 2010 से लगभग. ठीक है, और 2010 से जब मैंने इसको ड्रॉ करा गाइस, तो आप देख सकते हो कि इस एरिया में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला. एम आई करेक्ट? ठीक है, यहाँ पे इसको कहीं ब्रेकआउट मिला गाइस, एक बड़ी कैंडल से मिला, जैसा मैंने आपको बताया था. ठीक है, प्राइस ऊपर गया, इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करा. जब इसने रीटेस्ट करा ना, ये सॉलिड एंट्री पॉइंट होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, टारगेट बहुत बड़ा होता है. ठीक है, अब गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से विप्रो ने एक अच्छी खासी हमें अपर साइड दिखाया, लगभग 564 का हाई बनाया, 525 की क्लोजिंग दी. विप्रो कैश का चार्ट है. ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइए कि विप्रो अगर इन लेवल्स तक भी आ जाता है तो क्या ये बेरिश हो जाएगा? बताइए. नहीं. No, Because it is in uptrend. It's an uptrend. This is a solid area of demand. Okay, this is a area of demand, and you can clearly see from here only we already got a demand. So if in case if it is coming till this level, it is a buying opportunity for it, it is a selling opportunity for it, or we have to wait at these levels. Tell me. अगर विप्रो यहाँ तक आ जाता है धीमे धीमे ट्रेड करते हुए, so is it a buying opportunity for us or it's a selling opportunity for us? buying opportunity, sir. Buying opportunity. Right. तो अब आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर इस लेवल तक आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है. लेकिन मार्केट चल रहा है अभी 526 पे, ट्रेंड लाइन आ रही है लगभग हमारी 490 पे. तो अब आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा फॉल हो गया, इतने में तो हमारा अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा. राइट, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ पे गाइस आप क्या करिए, यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है, रेंज को हमने छोटा कर दिया गाइस. तो अब आपको मालूम है कि अगर ये 507 508 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी. बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी?
यस सर। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ गाइस, जो कि इस लेवल पे आ रही है, ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे इस बारे में कि क्या ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं हो जाता हम इसको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं देख रहे, राइट? क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो प्रीवियसली मार्केट यहाँ से जो यहाँ तक गया था, इसी जगह पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से नीचे आया था, फिर यहाँ से ऊपर गए, एक छोटी सी कैंडल से माइन्यूट क्लोजिंग दी और एक बड़ी कैंडल से इसने कंफर्मेशन दिया था गाइस। यानी कि इस लेवल को जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था हमारा, इस लेवल को अब मार्केट ने रीटेस्ट पहली बार किया है। सो इसमें हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहीं से यू टर्न मार दे, है कि नहीं है? ट्रू सर। ठीक है, और अगर मार्केट इन केस यहां से नीचे चलता है तो लगभग ये एक एरिया ऑफ डिमांड हमारे पास बना हुआ है, यहां तक फिर मार्केट हमारा आ सकता है लोअर साइड पे। ठीक है, ओवरऑल इसका ट्रेंड बुलिश है, तो हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम हायर लेवल्स पे ट्रैप भी हैं तो लोअर लेवल्स पे हम अपनी क्वांटिटी ऐड करके डेफिनेटली इसमें एक अच्छा प्रॉफिट लेते हुए निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका लॉन्ग टर्म टारगेट मैं आपको एक बार बता देता हूँ गाइस, जिन लोगों की पोजीशंस अगर हैं, ताकि आप लोगों को निकलने में दिक्कत ना हो। देखिए गाइस 504 का लगभग जो लेवल है काफ़ी स्ट्रांग लेवल है। ठीक है, 504 का जो लेवल है विप्रो कैश में इट इज़ अ स्ट्रांग लेवल। ठीक है, और ऊपर में अगर अभी आप देखेंगे तो 534 का लेवल है नियर बाय में जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये अगर ब्रेक हो जाता है गाइस तो 571 का टारगेट आपको पहला मिलेगा ऊपर में। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा लगभग 618 का। ये टारगेट्स अपर साइड में आप अपने टारगेट के तौर पे रख सकते हो। लोअर साइड में अगर आप देखते हो कि अगर ये 465 के नीचे चला जाता है और क्लोज दे देता है बिलो 465, तो ये वापस से नेगेटिव हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये 500 के लेवल को इतनी जल्दी तोड़ेगा। अगर ये 500 को तोड़ता है गाइस तो 480 से लेके 465 तक एक मेजर सपोर्ट इसका बना हुआ है, जहां से अगर हमें कोई एंट्री ट्रिगर मिलता है तो डेफिनेटली एक बाय बनेगा और अच्छा बाय बनेगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? सो इस लेवल को ध्यान रखना है। अगर मार्केट यहाँ पे 504 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो फिर मार्केट में हमें फॉल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुल जाता है तो यहाँ से पहला टारगेट जो हमारा रहेगा गाइज लगभग 534 का, दूसरा टारगेट 571 का और तीसरा टारगेट 618 का। गॉट इट? क्लियर गाइज? यस सर। ओके, एनी अदर स्टॉक्स? एसीसी देखेंगे क्या सर एक बार? ओके, पहले मैं एक बार रिलायंस देख लेता हूँ गाइज। रिलायंस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन निफ्टी मोमेंट। ओके, सो रिलायंस को एक बार ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है गाइज। ठीक है, तो गाइज अब आप लोग ही मुझे बताएंगे कि रिलायंस में क्या स्थिति बन रही है, रिलायंस कहाँ तक आ सकता है, किन लेवल्स तक गिर सकता है। ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट डू यू थिंक? रिलायंस इज बुलिश, बेयरिश, साइडवेज, व्हाट इट इज?
टेल मी. Sideways. Okay. Yes, Look at the same concept which I told you. 1 time, 2 time, 3 time. 3 time rejection from the same level. 1, 2, 3. कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, बहुत सॉलिड कंसेप्ट है गाइस. इसको आप अप्लाई करेंगे, रिजल्ट मिलेगा. कैसे ब्रेक हुआ ये लेवल? Huge quantity. विद द ह्यूज कैंडल, राइट. ह्यूज कैंडल से ब्रेक होने के बाद रिलायंस, रीटेस्ट किया है. यस, रिलायंस के अंदर गाइस अभी तक कोई रीटेस्टिंग नहीं हुई है. इस लेवल की रीटेस्टिंग नहीं हुई, यानी कि जो इंसान यहाँ पे एंट्री कर ली होगी जिसने, वो तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा वेट करता है कि प्राइस इस लेवल को वापस टच करे तो हम इसमें एंट्री करें, ठीक है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उसको चेक करना होता है, राइट. तो अब ये जो नीचे आ रहा है गाइज, ये लेवल एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर. ये कैश का चार्ट है, ठीक है, और ये लेवल लगभग गाइज हमारा आ रहा है 2040 के आसपास, ठीक है, ठीक है. लेकिन गाइज अगर 2040 के नीचे हमें क्लोज मिल जाता है, सो मार्केट कैन फॉल टिल दिस लेवल एंड टिल दिस लेवल. एम आई करेक्ट? Correct. सो कुल मिला के अगर 2040 में हम बाय कर भी रहे हैं, सो वी नीड टू कीप अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बिलो 2040, ठीक है, क्योंकि अगर ये क्लोज हो जाता है गाइस, सो आवर नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1930 and below that it will be 1820. So it can be a major fall in Reliance, okay. और अगर मैं आपको यहाँ पे टारगेट बताऊं कि हमारा टारगेट रिलायंस में अगर 2040 कट जाता है तो कहाँ तक आएगा? So guys, 2040 is a very strong support in Reliance Cash. Keep in mind it could be, yes guys. सो 2040 अगर ब्रेक होता है और मार्केट सस्टेन करता है उसके नीचे, सो नोट डाउन द टारगेट्स. इट इज 210, सॉरी 2010, 1972 एंड फाइनली 1925. ये टारगेट्स आपको फॉर श्योर देखने को मिल जाएंगे, बट फॉर दैट रिलायंस नीड टू ब्रेक 2040 लेवल्स. एम आई करेक्ट? ओके. और दूसरी बात यह है गाइस कि अगर रिलायंस को बुलिश होना है तो रिलायंस बुलिश होगा लगभग 2135 या 40 के ऊपर. जो प्रीवियस हाई इसने बनाया है उसके ऊपर अगर रिलायंस निकलेगा तो ही इट विल बी बुलिश, अदरवाइज इट इज नाउ इन बेरिश मोड. एंड 2040 इज वेरी क्रूशियल सपोर्ट. ये ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली फॉल आता हुआ हमें रिलायंस में दिख सकता है. All right, let us check ACC. Guys, ACC, if you check, it's in a kind of a channel only, right, in which I think it has broken on the lower side, again went up, okay, and अपर साइड में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज अ ट्रेंड लाइन, ओके. सो ACC इज वेरी क्लोज टू ब्रेकआउट लेवल्स गाइस, ठीक है. ACC में अगर 2075 2080 का लेवल ब्रीच आउट होता है, सो इट कैन बी अ वेरी शार्प अप मूव, ओके, बिकॉज इस लेवल को रीटेस्टिंग काफ़ी बार मिल चुकी है एंड इट इज़ अ डेली चार्ट, ओके. सो यू कैन सी नंबर ऑफ रीटेस्ट हेयर. वी हैव ऑलरेडी गॉट मेनी रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल्स, राइट. सो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी रैली अपर साइड में हमें आती हुई दिख सकती है इन ACC, ओके. और ACC के अंदर अगर हम लोअर साइड की बात करें तो लोअर साइड में अभी जो इसने लो बनाया है गाइज, विच इज अराउंड 1970. सो 1970 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ फॉर ACC, क्योंकि बिलो 1970 गाइज इट कैन अगेन स्टार्ट फॉलिंग.
and you can see 1970 is not a level which we should ignore. You can see it is a level which is already given respect earlier. What Mr. Kumar has asked me at the time of Nifty chart, okay, that how we'll plan it. So this is the level. Okay, we need to check the left side of the chart कि एक particular level को किस level पे respect मिला है. ठीक है, अगर respect उसको अच्छा मिला है then we can plan buy or sell as per the strength of that level. Okay, so below 1970 guys, definitely it can give a good fall here, else above 2075 or 2080 it can shoot up. All right, okay. For students, we'll do a discussion later on. Okay, so it is Igrashi motor. Okay, what is the symbol? सिंबल क्या है इसका मिस्टर पवार? इगार्शी है सर, वो इगार्शी नहीं है, IGARSHI करके है। इगार्शी मोटर कैट का काउंटर है सर, वो फीचर में नहीं है। हाँ ये है सर। Igarshi motor has given a good bounce back guys from the lower level and trading on a very strong resistance also, you can see. So Igarshi motor mein, let me draw it correctly guys once. Okay, so Igarshi motor above 577 or you can say 580, above 580 अगर हमें क्लोज मिलता है तो डेफिनेटली इट कैन शूट अप. ठीक है, बिकॉज 580 इज अ लेवल विच इज ऑलरेडी बीइंग गिवन रिस्पेक्ट प्रीवियसली. यू कैन सी हेयर क्लियरली इट इज गिवन अ गुड रिस्पेक्ट हेयर. ओके, और मार्केट उसी लेवल तक आ चुका है. सो अगर 580 क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली यहाँ से हमें अच्छी अपर साइड देखने को मिल सकती है इन इगार्शी मोटर. और दूसरी चीज अगर यहाँ पे हम इन दोनों ट्रेंड लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं, which is this one, so already we can see कि यहाँ पे काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट इसमें आया है. ठीक है, इगार्शी मोटर के अंदर एक ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आया है. ठीक है, इसको सस्टेन करने दीजिए, एक बार 580 के ऊपर निकलने दीजिए. अगर 580 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली इट कैन शूट अप. कहाँ तक जा सकता है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ. राइट, तो 575 580 बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है इगार्शी मोटर के लिए. अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 674 675 और 850 900 ये ऊपर के टारगेट्स हमारे ओपन हो जाएंगे. ठीक है, बिलो 470 वापस से ये वीक हो जाएगा. ठीक है, बिलो 470 इट विल बी वीक. और 575 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है. ठीक है, अगर वो ब्रेक होता है तो 675 815 और 900 तक के टारगेट्स हमें अपर साइड में मिल सकते हैं. एक इमीडिएट ब्रेकआउट तो आया है, कंफर्मेशन आने दीजिए मंडे को. अगर कंफर्मेशन आ जाती है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. स्टॉप लॉस हमें 470 के नीचे मेंटेन इसमें करना पड़ेगा. ऑलराइट, ठीक है. ओके, एनी अदर स्टॉक्स गाइस यू हैव? Coforge can be Coforge.
Guys, all of you, those who are present here, should go to the channel which is MVM Trading, and you can subscribe it for regular updates. You can also join our WhatsApp and Telegram. I will drop the link. Okay, in some time I will drop the link. And you should also promote it, guys, because if we are getting advanced levels with higher accuracy, and I think it should reach each and every trader on time. Okay, so it's your duty also that you are getting a perfect level, then you should also share with your friends, with all the needy traders, those who are there, so that it can help everyone. Coforge is on fire, guys. Already a breakout, retest. You have any positions in Coforge? I had, but I just wind up. Again, I'm planning for go for it. So for that it need to come down. Okay, so I think if it is moving more up, then 5120 should be the first target if it is moving up. Okay, and above that we have 6800, that is quite far away. Okay, on immediate basis, guys, we have a strong support around 3400 and 3500. This is the range. Below that again it will be weak, and it is a counter where I think right now we should not enter. Okay, because you can see it already shooted up after a very long time. It shooted up. Okay, so let it come down once. Okay, because it's a continuous rise. Okay, you can see here it is given a breakout. Okay, gone up, came down, gone up, came down, gone up, came down. So 3 times support at this level, and then finally shooted up. Okay, so I think right now it is not the time to enter into Coforge. Let it come down, let it retest the levels, might be in future whenever it will hit these levels. Okay, then I think we can plan for it. Otherwise, right now it is a counter which can give retracement anytime, so you can be trapped in this. Okay, so better to avoid, or if you really want to take entry in this, I think this should be the perfect level, which is somewhere around 3400, 3500. So till here at least it should come, then we can plan entry. Otherwise right now we should ignore this counter. It is highly bullish and it can retest anytime, it can retrace anytime, so you will be trapped. So better to avoid it. Okay, SBI and Motherson Sumi, definitely I will look into it. All the charts which I am looking here, which I am analyzing, are of cash. Okay, so don't get confused, guys. Each and every chart is of cash. Okay, Mr. Sunjit, 450, very strong resistance, and on downside 410 is strong support, because we did not get a close till now below this level. You can see here multiple supports, here also multiple supports. So below 410 only some kind of fall we can see in SBI, and above 450 we can see a up move in this. Okay, and on the midterm I think on the midterm, guys, if I see,
I only use trend lines, guys. Mostly I use trend lines for my analysis. Okay, so it is a very very good tool, guys. Below 420, I think a selling can be seen for almost 9 to 10 points, and if it is not breaking the low which it has made around 420, so we can see a upside till 450. And you can see the structure also in SBI. The structure has changed. It has made a low, high, higher, low, higher, high, and higher low. So pattern is bullish now. So until unless it is not breaking a level of 420, we can be on the long side. And if it is breaking 420, 421, then on downside 410 will be a very very strong support. All right. Okay. Right, sir. Thank you so much for the confirmation. Okay. So this will be the support levels on the downside. All right. Good. So guys, I hope and for other stocks, guys, I think you can contact me on the WhatsApp. Okay, I will be just sharing the link here. I will be just sharing my number 9039531139. Okay, this is the WhatsApp number, guys, for connecting with me, 9039531139, and my calling number is 983190100346. This is the calling number, guys. Okay, and we already have started one of our batches recently on 3rd of July. Okay, and we already have running batches right now, and if anyone is interested to learn these all things in detail, okay, it will be a 1 month training almost. The next batch is on 26th of July. Okay, so you can definitely contact me regarding this, and we can have word on the given number. Okay, so this is the number which I have given here. If anyone wants to know the complete information regarding everything, he can contact me. Okay, and guys, one small feedback I need from all of you, and then we'll close the session. Okay, it's almost 2 hours. Okay, so just a small feedback very quickly. Okay, starting from Mr. Amar. Just a small feedback. How was the session, and do you learn anything or not? Yes sir, it's awesome session. मैं आपका चैनल एमयूएम का चैनल फॉलो करता हूँ. सो मैंने फ्राइडे का भी आपका जो आपने बोला था कि मतलब जो अपर लाइन थी वो ब्रेकआउट नहीं हुई, तो आपने उस टाइम बताया था मेरे ग्रुप पे कि वहां से डाउनफॉल हो जाएगा, बिग डाउनफॉल, और उसके बाद ही बिग डाउनफॉल हो गया. तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो आपका जो मतलब सब जो लॉजिक है ना वो बहुत अच्छा है, और मैं आपको फॉलो करता हूँ. गुड गुड गुड. ये मिस्टर अविनाश पाटिल. हाँ सर. यस सर. जस्ट अ फीडबैक, स्मॉल फीडबैक. हाँ नहीं सर, बहुत ही अच्छा सेशन है. मैं तो आपको पहले से फॉलो कर रहा हूँ, जब से मतलब आपने चालू किया वेबिनार वगैरह, और आपका यूट्यूब के सभी और वीडियो वगैरह देखता हूँ, और मतलब ट्रेड भी करता हूँ, मतलब ज्यादा नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मतलब कभी कभी पोजिशनल ये कर लेता हूँ. ठीक है, तो चैनल का लिंक शेयर करते चलिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं. या डेफिनेटली सर. ठीक है, चैनल का लिंक शेयर करिए जितना हो सके. देखिए, हम लोगों को आगे बढ़ना है. वी हैव टू ग्रो टुगेदर. ओके, लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर. एटलीस्ट इतना सपोर्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों से मुझे मिलेगा, कि आप लोग चैनल का लिंक जरूर शेयर करिए. ठीक है, और लेवल्स तो आप लोग को ऑलरेडी फ्री में मिल ही रहे हैं, लर्निंग भी फ्री में मिल रही है. ठीक है, तो इतना सपोर्ट आप लोग डेफिनेटली एमवीएम को करिए. ठीक है, थैंक यू. यस भाविक, हाउ वाज द सेशन? सर सेशन तो काफी अच्छा ही था सर. ओके, काफी अच्छा सेशन था, और चीजें काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की. ओके, थैंक यू. यस फरहान. सर मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. एक्सपीरियंस वेरी गुड. कहाँ से हो आप? भोपाल में? सर कमला पार्क. कमला पार्क से. किसने लिंक दिया था आपको? वसीम ने? जी, वसीम ने दिया था. ठीक, थैंक यू. यस मिस्टर हरि कृष्णन. ओके,
Okay, Hitesh, how was the session? सर सेशन वाज गुड. ऑलवेज न्यू ही सीखने मिलता है और एड ऑन ही होता है सर. थैंक यू सर. Mr. Jay, how was Hello. the session? सर सेशन वाज वेरी गुड और एवरीडे आपके साथ थोड़ा थोड़ा लर्न करके हम लोग का ही बेनिफिट होता है. तो आई ट्राई कि मैं आपका कोई भी सेशन मतलब हम लोग का ट्रेनिंग का और आपका ये जो संडे का स्पेशली जो अलग से लेते हैं वो सेशन मेरे को मिस नहीं करना है. Yes, Mr. Hari Krishnan. Yes, sir. So session is very nice, very helpful. It's very very helpful for learning. I am also looking to join from your next batch. And one thing again, please talk something again. Yes. It is better. Okay. Something like Okay, fine.